سب سے پہلے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں ہیرا جاوید اور میں ہوں اسد سبحانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو دھچکا لگا، انتظار ہے وہ کب ثبوت پیش کریں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا پی ڈی ایم ایجنڈے کی تیاری کے وقت نون لیگ نے فوجی قیادت کا نام نہیں لیا تھا۔ اے پی سی میں اداروں سے متعلق بحث ضرور ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پورے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اتفاق ہوا تھا کہ کسی ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کہا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا۔ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ میں ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں نہ وہ مجھے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا اے پی سی میں طے پانے والی قراردادوں میں واضح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں صاحب نے بغیر ثبوت کسی کا نام نہیں لیا ہوگا۔ کرونا کے باعث نواز شریف سے براہ راست ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ نواز شریف سے ملاقات ضروری ہے تاکہ معاملے پر تفصیل سے بات کروں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے براہ راست فوجی سربراہوں کا نام لیا گیا جو کہ میرے لیے دھچکا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں صاحب نے بغیر ثبوت کسی کا نام نہیں لیا ہوگا۔ کرونا کے باعث نواز شریف سے براہ راست ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ نواز شریف سے ملاقات ضروری ہے تاکہ معاملے پر تفصیلاً بات چیت کر سکیں۔ حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی تحقیق کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے۔ بلاول کو پتہ چل گیا ہے نون لیگ انہیں استعمال کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی ایسے بیانیے کا حصہ نہیں بنے گی جس سے دشمن خوش ہو۔ شبلی فراز نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مختلف ایجنڈا ہے۔ پارٹیاں آہستہ آہستہ پی ڈی ایم بیانیے سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہیں۔ جو کریک نظر آ رہے تھے وہ اب ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ ہمارا موقف ہمیشہ پاکستان اور اس کے ادارے رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ کارروائی ہوگی لیکن ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے۔ فیصلہ سازی میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ گلگت کا الیکشن جیتیں گے۔ لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ عمران خان کو سب سے پہلے سلیکٹڈ۔ بلاول نے کہا نواز شریف سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ سابق گورنر سندھ اور لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ہمارے اتحادی ہیں، ان کی ذات رائے ہو سکتی ہے۔ 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی نہیں۔ ہم عدالت میں نہیں کہ ثبوت پیش کریں۔ سب سے پہلے سلیکٹڈ بلاول بھٹو نے کہا تھا، ہم نے نہیں۔ اگر عمران خان سلیکٹڈ ہیں تو سلیکٹ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہانیوں کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے۔ پاکستان میں سویلین بالادستی کے لیے تحفظات کا اظہار پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے کیا گیا۔ محمد زبیر بلاول بھٹو کے نواز شریف سے متعلق بیان پر رد عمل دے رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سنبھالی تو ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ بڑی دیر کے بعد معیشت اب آگے بڑھ رہی ہے۔ ایم ایل 1 کا معاشی سرگرمیوں میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ خواہش ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جسے قرض نہ لینے پڑے۔ وہ حسن ابدال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 61 میں جو انگریز نے یہ ساری ریلوے لائنز لگائیں اس سے بھی ہم نے جب آزادی میں جو ہمیں ملی لائنیں اس سے کم کر دی، جبکہ ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں سب سے تیز ملک ترقی کر رہا ہے آج چائنا، انہوں نے اور ریلوے لائنز کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا ہے، اور انہوں نے جو ریلویز ڈیولپ کیے ہیں وہ دنیا میں سب سے تیز اب جلدی پہنچنے کا سفر دنیا میں چائنا کے اندر ہے ریلوے کے ذریعے۔ اور جو شیخ صاحب نے دوسری بات کی ایم ایل 1 کی، ایم ایل 1 پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ $9 ارب یہ سب سے
9 अरब डॉलर, ये सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना के साथ मिलके हमने फिर नेगोशिएट करके ये 6 अरब डॉलर पे लिए हैं, 3 अरब डॉलर हमने कम करवाया। और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए स्पेशल अंडर पासेस बनेंगे या ओवर पासेस, इसके पूरे गेट लगेंगे, इसके ये बिल्कुल एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है वजीर आजम की क़यादत में 1 रुपए की चीज भी इम्पोर्ट नहीं की। इमरान खान ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई ट्रीटिस नहीं लगाई। मुखालिफिन जलते हैं कि इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन में मकामी वसाइल को बरोएकार लाया गया। ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन मंसूबे पर भी इस महीने मुकम्मल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास जब भी आप आते हैं वक्त कम होता है, इसलिए 2-3 बातें, ये KCR, ये जितने मजदूर पीछे हैं ये इन्होंने बनाई हैं। ये 40 KCR रावलपिंडी में बनी है और एक पैसा भी हमने, एक चीज प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताते हुए मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, आपकी क़यादत में 1 रुपए की चीज हमने इंपोर्ट नहीं की है। और इसके अलावा ये 1521 में बाबा गुरु नानक यहां तशरीफ लाए जी। 127 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन था, इसको 2 साल में मुकम्मल किया। जब आप ननकाना साहब जाएं, इस महीने ननकाना साहब का भी रेलवे स्टेशन मुकम्मल हो जाएगा जी। क्योंकि ये लोग आते थे, बेचारों की रिहाइश का मसला था, सिखों के लिए बहुत तकलीफें थी, सो हमने स्टेशन को ही उसका पहला बुनियादी मरकज बना दिया। बड़े बड़े हॉल बनाए हैं, बड़े बड़े इसमें हमने मेहमान खाने बनाए हैं, ताकि यहाँ से चंद गज के फासले पे पंजा साहब है, वो पैदल जाना चाहें, गाड़ी पे जाना चाहें, सिक्योरिटी पे जाना चाहें। ये स्टेशन प्राइम मिनिस्टर साहब 127 साल बाद जो बना है, ये ML1 पे है। अब जल्दी जल्दी मुझे कवर करना पड़ रहा है कि 16 साल पहले ML1 पे वजीर आजम साहब काम शुरू किया है। ये अल्लाह ने आपको काम देना था, आपसे काम लेना था कि एक्निक से ML1 अप्रूव हो गया और 9.2 बिलियन की बजाय आपकी फिनांस की टीम ने और आपकी दूसरी टीम ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन लंदन से 7 माह बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा का कहना था, फिलहाल सेहत में फाल किरदार अदा करने का नहीं, सहाफत में फाल किरदार अदा करने का नहीं सोचा। अभी अच्छा खासा थका हुआ हूँ, कुछ दिन और आराम करूंगा। उन्होंने कहा कि इलाज की गर्ज से बाहर गया था और 7 साल से हर साल इलाज के लिए बाहर जाता हूँ। अपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है जिसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार साफ और शफाफ है। जहांगीर तरीन मुल्क में चीनी बहरान के बाद शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद लंदन रवाना हो गए थे और तकरीबन 7 माह बाद लंदन में क़याम पसीर थे। मैं गया था, बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको चाहता। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि किराए के तर्जुमानों में ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलने की रेस लगी है। आटा चीनी और वोट चोर की फासिस्ट सोच का अमली मुजाहिरा पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हक मांगने वालों पर डंडे बरसाने वालों का योम हिसाब आ चुका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि आज पंजाब को तरक्की देने वाला आवाम का खादिम शहबाज शरीफ पाबंदे सलासल है। जो किसान पैकेज दे उसको सजा और जो किसान की जान ले उस वोट चोर को इनाम। आटा चीनी चोरों ने शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके पंजाब की तरक्की और खुशहाली छीन ली है। शहबाज शरीफ को नाहक गिरफ्तार करके वोट चोर सिलेक्टेड अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस और तरक्की चोर कर रहे हैं।
मरियम औरंगजेब का कहना था कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, फिर किस वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया हुआ है। हर रोज इस हुकूमत की आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरी पकड़ी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। सिलेक्टेड वजीर आजम और किराए के तर्जुमानों में झूठ का मुकाबला जारी है। अवाम के सवालात का जवाब देना होगा, उनकी महरूमियों और मुसीबतों का हिसाब देना होगा। इमरान साहब, आप सियासी मुखालफिन को ना छोड़ें, लेकिन अपोजिशन अवाम की जान आपसे छुड़वा के रहेंगे। शहबाज गिल ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुस्लिम लीगी बयानिए को मुस्तरद करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से क्लीन स्वीप करेगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन के जलसों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन का कल एक और फ्लॉप सियासी थिएटर खोदा पहाड़ निकला चूहा के सिवा कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी करप्शन करने वाला टोला गिलगित के मासूम लोगों को झांसा दे रहा है। मुस्लिम लीग नून की गद्दारी और करप्शन के चर्चे पूरे बल्तिस्तान की गलियों में बुलंद हो रहे हैं। इन लोगों ने सैर सपाटे के अलावा आवाम का हाल तक नहीं पूछा। शहबाज गिल का कहना था कि ओपोजिशन का इदारों के खिलाफ हर जगह हर्जा सराई करना उनका पुराना वतीरा है। अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी तहाइफ तक हड़प कर जाने वाले आज किस मुंह से इमरान खान पर उंगलियां उठा सकते हैं। अदालतों से मफरूर टोला कभी भी आवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान सामने आ गया। वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक ने अपने बयान में कहा कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO मोहम्मद उस्मान ने राब्ता किया। सलमान शहबाज के 60 करोड़ वाइट करने के लिए राब्ता किया गया। CFO को बताया गया कि रकम वाइट करना हमारे बस की बात नहीं। CFO ने बताया कि TTs के लिए मुश्ताक एंड कंपनीज का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। पुराने कारोबारी ताल्लुकात के बायस अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। चीफ मिनिस्टर का बेटा होने के बायस सलमान शहबाज को इनकार मुमकिन नहीं था। गवाह यासिर मुश्ताक ने कहा कि बैरून मुल्क से 21 करोड़ हमारी कंपनी के अकाउंट में आए। जैसे जैसे रकम आती है हम चेक मोहम्मद उस्मान को दे देते थे। उस्मान के कहने पर एक और बैंक अकाउंट खुलवाया। इसी ब्रांच में सलमान शहबाज का अकाउंट पहले से मौजूद था। इस अकाउंट में 29 करोड़ की TT लगवाई गई। सलमान शहबाज ने अपने मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इस अकाउंट से 10 करोड़ मुश्ताक एंड कंपनी के नाम मुंतकिल किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 16,242 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 30 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार बैठे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,374 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,40,251 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 16,242 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,17,086 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,923 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी अहलिया सईदा तूबा आमिर समेत आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का शिकार हो गए। इस हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए बताया कि मैं और मेरी अहलिया सईदा तूबा आमिर कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने अपने तमाम चाहने वालों से दुआओं की अपील भी की है। अमरीकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर हैं और अब तमाम निगाहें 4 रियासतों के नताइज पर जमी हैं, जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्वीट्स में इंतखाबी अमल पर संगीन एतराजात लगा दिए हैं। इस वक्त पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना में वोटों की गिनती जारी है और बाइडन को नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट मांगे मुल्क चाहिए तो वो कामयाबी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इंतखाब में डाले गए तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जो खुद अमरीकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की सबसे ज्यादा तादाद भी है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उनके पास धांधली के सबूत हैं जिसे आला अदालत में पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई और मुझे धोखाधड़ी के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि मुझे पेंसिल्वेनिया में 7 लाख ज्यादा वोट मिले, लेकिन मेरे वोट कम करके 90,000 की बढ़तरी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। डेमोक्रेट्स ने गैर कानूनी वोटों के जरिए इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। मुदाखलत के बावजूद मैं फ्लोरिडा, आइवा, इंडियाना और ओहायो की अहम रियासतों में जीता। सदर का कहना था कि लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास धांधली के सबूत हैं जिसे आला अदालत में पेश करेंगे। अमरीकी सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं कि लोगों को खामोश, सताया या हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं कि लोगों को खामोश, सताया या हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का ये भी कहना है कि हर वोट शुमार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका बहुत दूर आ चुका है, उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और ऐसा करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी और अजीम इंसान से महरूम हो गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला सोगवार खानदान को सब्र और हिम्मत अता करे। पाकिस्तान हॉकी का दरख्शंदा सितारा और अपने दौर के अजीम सेंटर फॉरवर्ड ओलंपियन अब्दुल रशीद जूनियर 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, जो शदीद अलालत का शिकार थे। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में बी क्लास की सहूलतें दी जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा उन्हें जेल खानाजात में इस्लाहात के लिए वजीर बनाया गया। कप्तान बेहतर जानता है कि किस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। उन्होंने कहा कि जेलों में किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कानून और अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। उन्हें जेल में बी क्लास की सहूलत दी जाएगी। अमीर हो या गरीब, किसी से ज्यादती नहीं होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन